Good morning, everybody. Let me have the privilege to welcome you all in the first session of Cybersecurity Awareness October 2020, organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan. I'm Kumar Saurav, PGT English, Kendriya Vidyalaya Damoh. Thanks for joining in. Today, in the first session, we'll talk about different kinds of threats which comes from internet and the cyber world. We have been using so many different cutting edge technologies like internet, mobile applications, different websites, internet banking, phone banking, and whatnot. But with these cutting edge technologies, we have got the cyber threat or cyber crime as a bonus. So, what are those threats? How to stop these things? How can we not fall prey to these things? This is what we are going to talk about in this session. Let's begin very quickly. I'll try to be bilingual so it will be easier for you all to understand. So first we'll talk about cyber security. What is cyber security? What is the word cyber here, and why is it needed so dearly? Cyber is related to the threats or crime which take place online, like fraud, cheating, or different kinds of viruses or malwares, phishing, etc. You must have heard about the things like someone called somebody, asked about the PIN and details of ATM card or credit card, and they took away the money. And they were trying to, or they tried to call a person, as if they were from a bank or something like that, and they would call you and they would tell you that your ATM card or debit card or credit card has been blocked, and they need some details to unlock that. And those people who are not so tech savvy, they fall prey to it. Actually, there have been so many cases where people were from IT companies and they got cheated. One incident I remember, when a girl from an IT company, she was working in an IT company in Hyderabad or Bengaluru somewhere, and she got cheated over phone when she tried to get back her money from Zomato. She searched for Zomato's customer care number on Google and she found a number. She called to that person, and he tricked her into transferring a huge amount of money into an account. So we need to be very clear, very responsible, very alert when it comes to these kinds of things. So we'll talk about different kinds of threats, different kinds of crimes one by one. Let's see what do we get. तो जो पहला क्राइम है या पहले तरह का जो थ्रेट है वो हम बात करेंगे, फ्रॉड बाय योर फ़ोन कॉल. इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन नाउ, जहाँ आपसे कोई डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगता है. तो स्टार्ट में मैं पहले एकदम श्योर कर दूं आपको और सर्टेन कर दूं आपको, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए. और सारे बैंक और जितने आपके क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स हैं वो आपको बार बार इसके लिए एसएमएस करते रहते हैं, इसके लिए आपको ईमेल करते रहते हैं एंड व्हाट नॉट. तो वो ये लिखते हैं कि कोई भी बैंक का एम्प्लॉई या बैंक आपसे कभी आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स, इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र नेम पासवर्ड्स या ऐसी कोई भी सेंसिटिव जानकारी, आधार कार्ड, ऐसी कोई भी सेंसिटिव जानकारी आपसे नहीं मांगता है. और कभी कोई आपसे ऐसा मांगता है तो आप समझिए वो आपको चीट करने वाला है. ही इज़ नॉट अ पर्सन जिसके ऊपर आप यकीन कर सकें. तो इनसे बचने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि कॉल आ कहाँ से रही है. हु इज़ कॉलिंग एंड फ्रॉम वेयर इज़ ही कॉलिंग. बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपके मोबाइल पे जो यूज़ करते हैं आप लोग, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं.
जिसमें जो कॉल्स आती हैं उस मोबाइल नंबर की रेटिंग दी होती है और उसके बारे में डिटेल्स भी दी होती हैं। एक नॉर्मली हम लोग ट्रू कॉलर बहुत यूज़ करते हैं। एंड if you try to find out, as soon as a person calls you and the number is not saved in your mobile phone, some details regarding it is shown to you. तो उसमें अगर रेड में लिखा आया फ्रॉड या चीटेड या स्कैम और समथिंग लाइक दैट, बी वेरी अलर्ट। दूसरी बात, जो भी आपके कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं वो मोस्टली 1800 से स्टार्ट होते हैं, 1860 से स्टार्ट होते हैं। कभी भी वो नॉर्मल नंबर्स नहीं होते हैं, जैसे आपके मोबाइल नंबर्स हैं वैसे नंबर्स नहीं होते हैं। कभी ऐसे नंबर से कॉल आए और आपको ऐसी बातें बताई जाए तो बी वेरी अलर्ट अबाउट इट, है ना। 98% केसेस में वो आपको चीट ही करने वाले हैं। तो मोबाइल नंबर को ध्यान से देखें। कभी भी वो नॉर्मल मोबाइल नंबर से कॉल आया आपसे कुछ चीज़ें पूछने के लिए तो उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। किसी से सलाह ले लीजिए आप उस पर बात करने से पहले। कह दीजिए हम बैंक विजिट कर लेंगे, हम आपके ऑफिस विजिट कर लेंगे, बिल्कुल उनको बात नहीं करनी है उनसे। दूसरा, जब भी किसी कस्टमर केयर कंपनी से कॉल आता है तो एक तो वो 1860, 1800 या फिर +11 ऐसे करके नंबर कुछ आते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे नंबर से कॉल आए तो बिल्कुल आप श्योर हो जाए कि ये तो वहीं से है और आई शुड गिव द पर्सन ऑल द डिटेल्स ही और शी इज़ आस्किंग फॉर। ऐसा कभी नहीं करना है। आप हमेशा ध्यान दें कि आपसे मांगा क्या जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम पासवर्ड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर या यूपीआई आईडी आपसे मांगा जा रहा है, फ़ोनपे की आईडी मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है आपसे, या आपके बैंक में कौन सा मोबाइल नंबर ये मांगा जा रहा है। बी वेरी अलर्ट। ऐसी सेंसिटिव जानकारी कभी बैंक नहीं मांगता। अगर आपको जानकारी देनी ज़रूरी भी लग रही है तो आप उनसे बोलिए कि ठीक है हम बैंक आके दे लेंगे, हम आपके मैनेजर को कॉल कर लेते हैं। आप बैंक के मैनेजर को कॉल कर लीजिए, अपने किसी ऑफिशियल को कॉल कर लीजिए जिसको आप जानते हैं, पर प्लीज़ कोई डिटेल उनको ना दिया करें आप। लेटेस्ट जो फ्रॉड्स हुए हैं उसमें एक तो जो जोमेटो वाला किस्सा मैंने बताया, जहां आप किसी कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं, किसी भी बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का या कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं और आपको गलत नंबर मिलता है। तो इस बारे में बिल्कुल सावधान रहें। दूसरी चीज़, दूसरा जो सबसे बड़ा थ्रेट आया है वो है यूपीआई का। आजकल यूपीआई क्या होता है? यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको बोलते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू आप गूगल पे, फ़ोनपे, भीम एप्लीकेशंस, भीम जैसे एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो रिसेंटली ये देखने में आया कि उन लोगों ने आपको ट्रिक किया है, कई लोगों को ट्रिक किया गया है कि एक रिक्वेस्ट आपके यहाँ गई है, आप उसको क्लिक करके और अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिए, या उसको क्लिक करिए और उससे आप 25,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे जो आपने जीते हैं, या ऐसे सब करते हैं। तो उसमें होता क्या, वो रिक्वेस्ट देते हैं आपको पैसे के लिए कि 10,000 रुपये की रिक्वेस्ट उन्होंने डाल दी। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे आपसे पूछा जाता है, वो एप्लीकेशन पूछता है पर आप पढ़ते नहीं हैं, वो पूछता है कि क्या आपको 10,000 रुपये इनके बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं, क्या आप इनको जानते हैं। ऐसा कई बार वो एप्लीकेशन नहीं भी पूछेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर किसी लिंक पे क्लिक करके और अपना यूपीआई पासवर्ड डालना, अपना फ़ोनपे का, गूगल पे का, भीम का, अमेज़न पे का, पेटीएम का पासवर्ड डालना, ये बिल्कुल अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप ऐसा समझिए कि वो पैसे आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और बहुत सारा हो चुका है ऐसा। तो इन सब चीज़ों से आप बचे रहें। तो फ्रॉड बाई अ फ़ोन कॉल और फ्रॉड बाई यूपीआई आईडी, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बहुत कॉमन है, आप इससे बचें। इसके बारे में और जानकारी भी आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। बस इसके लिए श्योर ये हो लेना है कि आप बिल्कुल भी अपना कोई सेंसिटिव डेटा, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, हम कहीं भी जाते हैं अपना आधार कार्ड की कॉपी कराते हैं, उसका स्कैन कराते हैं, वही छोड़ देते हैं। आधार कार्ड का जो आपका नंबर है, स्पेशली अगर आपने उसको बैंक से अटैच करा रखा है, ऐड करा रखा है, और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन दैट। आपको एक बात बता दें, बहुत ज़रूरी, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि कोई भी बैंक, कोई भी मोबाइल कंपनी या कोई भी और एंटिटी
आपसे आधार कार्ड के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकती है। अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो दे कांट फोर्स यू इनटू इट। हम लोग इसलिए कर लेते हैं कि वो थोड़ा आसान होता है, पर प्रॉब्लम उससे क्या होती है? प्रॉब्लम इससे वो होती है कि आपको चीट करना बहुत आसान हो जाता है। तो कहीं भी आधार कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएँ तो आप ज़रूर पूछें कि बहुत ज़रूरी है तो आप दें, नहीं तो देनी ज़रूरी नहीं होती है। ये बात आप ध्यान लीजिए, ये केवल ध्यान दीजिएगा, केवल आधार कार्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि be very sure that you are not providing your Aadhaar number, your voter ID card number, your PAN card number, your UAN number, your NPS number, any kind of identity revealing details. You are not providing it to anybody who is unknown to you. Okay, तो ऐसा कर लेंगे तो आप इन चीज़ों से बचे रह जाएंगे। किसी रिक्वेस्ट पे नहीं जाना है, किसी रिक्वेस्ट में पिन नहीं डालना है अपना, UPI पिन नहीं डालना है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पिन नहीं डालना है। ये सब बातें आप ध्यान दे लें। अगर आपने वो ट्रांजैक्शन नहीं इनिशिएट किया है तो आपको उसमें पिन नहीं डालना है, ये आप ध्यान रखें। पहले तरह का थ्रेट है और बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग फ़ोन पे, गूगल पे, UPI, mobile applications, different kinds of wallets like Paytm and PhonePe and FreeCharge and others, different kinds of internet banking. We'll talk about internet banking and how they do fraud with that too later. एक और बात, आपको पता है आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे और पैसा आप निकाल सकते हैं बैंक से, ऐसी वाली सिचुएशन है। तो मोबाइल में क्या एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं आप, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। पर अभी याद रखें कि कोई भी सेंसिटिव डेटा हमें कहीं भी नहीं देना है, चाहे वो कोई भी मांग रहा हो आपसे। पहले उसके बारे में डिटेल ले लें। आपको थोड़ा सा डाउट है तो अपने किसी ऐसे से बात कर लें जिसको इन चीज़ों की थोड़ी नॉलेज है। दूसरा जो बहुत कॉमन टाइप का एक और फ्रॉड है वो फ्रॉड बाय ईमेल। ये बहुत पुराना है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट काइंड्स ऑफ फ्रॉड्स। जब ईमेल स्टार्ट हुआ उसके कुछ दिन बाद से ही स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या होता है, आपको ईमेल किया जाता है एंड यू हैव सम काइंड ऑफ डिटेल्स देयर, अ काइंड ऑफ अ वेबसाइट, अ काइंड ऑफ लेटर और समथिंग लाइक दैट, जहां आपको बोला जाता है कि आपका सिलेक्शन यहाँ हो गया है, वहाँ हो गया है, आप इस लिंक पे क्लिक करें, यहाँ अपनी डिटेल भरें, ऐसे वैसे लाइक दैट। मुझे याद है 2008 या 10 की बात है, मेरा एक दोस्त था एंड ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज MBA and he got an email from Taj Hotel कि he has been selected and he needs to he would need to provide all the details and different things. He was very happy. I was teaching in a computer institute at that time and he came to me and he showed me the email and he was asking me to fill up all the details. मैंने उस ईमेल को ध्यान से चेक किया तो मुझे पता चल गया कि ये फ्रॉड था, बिल्कुल बेकार वाहियात ईमेल था वो। तो उसको फिर मैंने समझाया। अब इसको कैसे जानते हैं कि बेकार की ईमेल है? पहली बात ये कि आप हमेशा एकदम श्योर हो लें कि जब तक आपने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, जब तक आपने कुछ अप्लाई नहीं किया किसी चीज़ के लिए, किसी जॉब के लिए, आपको कोई फ्री में जॉब नहीं दे रहा है आजकल, कभी भी नहीं दे सकता आपको। तो ये बात आप ध्यान दे लें। दूसरा, ईमेल हम चेक कैसे करें कि वास्तव में ईमेल जो आया है, चलिए मैं अपना ईमेल यहाँ खोल लेता हूँ जब तक हम बात करते हैं। हम चेक कैसे करें कि जो ईमेल हमारे यहाँ आया है वो सही जगह से आया है या नहीं आया है, ये हम चेक कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ये देखें कि उसका सेंडर कौन है। अब सेंडर में नाम तो वो बिल्कुल आराम से वो चेंज कर सकता है, नाम कुछ भी लिख सकता है, पर वो जो ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, दे हैव देयर ओन डोमेन। जैसे हम लोग अभी केंद्रीय विद्यालय की ओर से जो हम लोगों को ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं, तो उसका जो डोमेन नेम है वो KBSRO-Jabalpur.in है। कोई google.com या gmail.com या yahoo.com या hotmail.com नहीं है। तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि जब भी आपके यहाँ कोई ईमेल आएगा, उसका ईमेल एड्रेस जो होगा वो उस कंपनी की वेबसाइट का डोमेन होगा, न कि gmail.com पे कोई अपना ईमेल आईडी बनाती हैं ये कंपनियाँ, जो बड़ी कंपनीज होती हैं।
तो ईमेल कहाँ से आया, मेरी अभी इंटरनेट की स्पीड मेरी स्लो है तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे, पर मैं कोशिश करूँगा कि कभी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना के डाल दूँगा कैसे ईमेल से ये लोग करते हैं। तो ईमेल कहाँ से आया ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको डाउट्स हैं उस ईमेल पे तो आप प्लीज़ चेक करा लीजिए किसी IT एक्सपर्ट से, किसी ऐसे इंसान से जो थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज रखते हो। ईमेल में आए किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। आपने उस लिंक पे क्लिक किया और बहुत सारी डिटेल्स वहाँ गई, आपके ईमेल का यूज़र नेम पासवर्ड उन लोगों के यहाँ गया। तो जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि वो ईमेल सही जगह से आया हुआ है, किसी भी अरे गहरे ईमेल पे और उसके लिंक पे, उसमें दी गई लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, उसको ओपन ही नहीं करना है। एक्चुअली ओपन ही नहीं करना है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपने उस ईमेल को ओपन किया, उसमें एक जो मॉलिशियस कोड है वो आपके कंप्यूटर में गया, एंड दैट कोड विल वर्क एज अ बैकडोर एंट्री फॉर द अटैकर, फॉर द हैकर। तो आपने उसको एंट्री दे दी अपने कंप्यूटर में, अब वो जो चाहे वो कर सकता है वहाँ से। तो किसी भी ऐसे ईमेल को ओपन नहीं करना है जिसके बारे में आप श्योर नहीं है कि वो सही जगह से आया है, या सही इंसान ने आपको भेजा है, या ऐसे इंसान ने भेजा है जिसको आप जानते हैं, या ऐसी कंपनी से आया है जो आपकी ट्रस्टेड कंपनी है। तो बिल्कुल आपको उस ईमेल को ओपन नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। ज़रूरी लगे तो किसी को दिखा लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यही वाला ओपन करता हूँ, ये फ्लिपकार्ट का जो मेरा ईमेल है, तो हम देखेंगे कहाँ से कि ये ईमेल आया कहाँ से। अब ये flipkart.com ये कोई भी लिख सकता है, पर ये जो ईमेल आईडी है ये वाली, ये कोई नहीं कर सकता। अब देखिए noreply@flipkart.com है। आप इसको ओपन करेंगे तो और डिटेल्स के बारे में आगे इस पर क्लिक करेंगे तो noreply@flipkart.com है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है ये कोई भी बड़ी कंपनी होगी तो ऐसे ही उसके डोमेन का नाम होगा। रिलायंस इंडिया का अपना होगा, सिस्को का अपना होगा, या इन्फोसिस का अपना होगा, स्टेट बैंक का अपना होगा, है ना। स्टेट बैंक से जो ईमेल आएंगे उनके अपने वो अपनी तरह का होगा, sbi.co.in करके होगा। तो ये बात ध्यान रखें, कोई भी जीमेल वाला जो ईमेल एड्रेस है उसको एकदम छूना भी नहीं है हमें, बिल्कुल छूना नहीं है हमें, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली इट कैन हार्म यू। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ईमेल आपके स्पैम में पड़े होंगे, जो स्पैम फोल्डर होता है, ऐसे बहुत सारे ईमेल स्पैम में आपके जो फालतू के ईमेल आते रहते हैं मार्केटिंग वाले, वो पड़े रहते हैं। तो आपको जो ईमेल में बेकार के ईमेल लिख रहे हैं या कोई ऐसा ईमेल लिख रहा है जो कहीं ट्रस्टेड सोर्स से नहीं लग रहा है, उसको ओपन ही नहीं करना है आपको, वरना आप उनके चक्कर में फंस जाएंगे जो अटैकर्स हैं, जो हैकर्स हैं। तीसरा, फ्रॉड बाय एक्सटेंशंस एंड एप्लीकेशंस। अब मोबाइल एप्लीकेशंस तो आप जानते हैं, मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, है ना। जैसे भी आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से 50 एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, या एप्पल के अपने स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से पता नहीं कितने एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं। पर क्या वो सेफ़ हैं? बहुत सारे एप्लीकेशंस गूगल अपने प्ले स्टोर से हटाता रहता है। क्या आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो अभी भी प्ले स्टोर में है? तो ये देखना ज़रूरी होता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस बैन किए गए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, गूगल अपने खुद उसने बैन किया। तो ये ध्यान देना होता है कि आप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं क्या उसकी ज़रूरत है आपको, और ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो क्या उसको फिर रखना होता है। आप ऐसे सारे एप्लीकेशंस अपने मोबाइल से हटा दीजिए जिनका आप रेयरली यूज़ करते हैं या यूज़ करते ही नहीं हैं। कभी ज़रूरत पड़े तो फिर इंस्टॉल कर लीजिए। बेकार के एप्लीकेशंस आपने अपने मोबाइल में रख रहे हैं तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर समवेयर डाउन द लाइन यूजिंग योर आइडेंटिटी। ट्राई टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ परमिशन दे आर आस्किंग फॉर, है ना। अब वो एक एप्लीकेशन है पता चला कि वीडियो देखने के लिए, और वो आपसे आपकी मोबाइल का आइडेंटिटी मांग रहा है, आपका IMEI मांग रहा है, तो देखना ज़रूरी होता है कि वाई डज इट नीड इट, ओके, एट द फर्स्ट प्लेस। तो एप्लीकेशंस जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, जो आप रेयरली यूज़ करते हैं, महीने में एक बार, 2 बार, हफ्ते में एक बार, 2 बार यूज़ करते हैं, प्लीज़ उनको हटा लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, हम सब लोगों के पास होता है। आप कभी भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं जब ज़रूरी हो तो, है ना। बेकार के एप्लीकेशंस मोबाइल में रखने से एक तो मोबाइल की आपकी बैटरी भी ख़राब होती है, पर जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है। और चूँकि उस एप्लीकेशन को आपने अलाउ करके, आपने परमिशन दे के इंस्टॉल किया होता है, तो मैक्सिमम डिटेल्स जो परमिशंस मांगता है उसको आपने अलाउ किया होता है। हम देखते हैं परमिशन क्या मांग रहे हैं, हम देखते हुए नहीं है। ऑडियो के परमिशन मांग रहा है, वीडियो के परमिशन मांग रहा है, किसी मांग रहा है, हम अलाउ करते जाते हैं। अलाउ करते समय देखिए मांग क्या रहा है, क्या उसको उसकी ज़रूरत है।
आप की एक डिक्शनरी इंस्टॉल कर ले, सपोज करें एक डिक्शनरी इंस्टॉल किया आपने और वो आपसे कैमरे के परमिशन मांग रहा है, वो आपसे माइक्रोफोन के परमिशन मांग रहा है, तो माइक्रोफोन के परमिशन मांग रहा है, हो सकता है वॉइस टाइपिंग के लिए मांग रहा हो, पर कैमरे के परमिशन क्यों मांग रहा है वो, है ना। आपके मोबाइल में कितने एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किए हैं, उनकी परमिशन क्यों मांग रहा है वो, ये देखना ज़रूरी होता है। और सबको अलाउ करना ज़रूरी नहीं होता, उसमें से आप कुछ डिक्लाइन भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, तो जो ज़रूरत ना हो उनको डिनाई कर दिया करें। और ये बातें आप ध्यान रखें कि सारे एप्लीकेशंस अच्छे नहीं होते हैं। और थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं, थर्ड पार्टी का मतलब जो आपके प्ले स्टोर जो आपका ओरिजिनल है, गूगल प्ले स्टोर हुआ, एप्पल प्ले स्टोर हुआ, एप्पल का अपना ऐप स्टोर हुआ, उससे बाहर के जो एप्लीकेशंस हैं, प्लीज़ डू नॉट यूज़ देम। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर आपको फ्री IPL देखने वाला एप्लीकेशंस चाहिए, तो मैंने हंस के उसको मना कर दिया। मैंने बोला बेटा मेरे पास है हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन है, मैं देख लूँगा। पर कितने सारे लोग देख रहे हैं उन एप्लीकेशंस का यूज़ करके, पर क्या उनको पता है कि वो एप्लीकेशंस उन्होंने प्ले स्टोर से तो मिलेगी नहीं, वो तो बाहर की है और तो हैक्ड एप्लीकेशंस है वो, है ना, फोक्ड एप्लीकेशंस है। तो वो एप्लीकेशन में क्या ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशंस आपको केवल वीडियो दिखा रहा है? क्या उस एप्लीकेशन में उन लोगों ने ऐसा कोड नहीं डाला होगा जिससे वो आपके आइडेंटिटी चुरा रहे हैं, आपकी डिटेल्स चुरा रहे हैं, आपकी यूज़र नेम पासवर्ड चुरा रहे हैं, आपके पर्सनल फ़ोटोज़ चुरा रहे हैं, वीडियोज़ चुरा रहे हैं? बहुत पॉसिबल है और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो प्लीज़ आप जो एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से बाहर की हैं, ऐप स्टोर से बाहर की हैं, उन्हें यूज़ करने से रिफ्रेन करें, ना यूज़ करें, है ना। आप 200 रुपये अपने बचाएंगे और पता चला कि आपके हज़ारों रुपए, लाखों रुपए का चूना लग गया, और नहीं भी लगा तो आपको बहुत सारा चूना लग गया आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो ऐसा ना करें आप प्लीज़। इसके बारे में दूसरा एक्सटेंशन, इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ही, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे हम लोग अटेंडेंस के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर जो टाइल्ड व्यू होता है उसके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं, एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि वो एक्सटेंशंस सही जगह से हैं, गलत जगह से हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी ओपेरा वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो इसके एक्सटेंशंस के लिए आप सर्च करेंगे कि एक्सटेंशंस फॉर ओपेरा, तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। ये एक्सटेंशन ओपेरा एडॉन्स, तो इस पर बहुत एड एडॉन्स मिलेंगे, हज़ारों की संख्या में मिलेंगे। तो क्या आप हज़ारों के हज़ारों इंस्टॉल करेंगे? आप नहीं इंस्टॉल करेंगे ना। तो उनको देखना होता है कि वो एक्सटेंशन जो इंस्टॉल कर रहे हैं कितने काम के हैं आपके, और काम के अलावा क्या वो सही सोर्स से हैं। ऐसा तो नहीं कि उसमें भी वो पूछता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें आप जब इंस्टॉल करेंगे तो दिखाता है कि क्या क्या परमिशन ये आपसे मांग रहा है। तो वो परमिशन देखनी ज़रूरी होती है कि आपकी क्या क्या डिटेल्स वो देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा हो, वो ऐड करने को मांग रहा हो, या उनको देखने के लिए वो परमिशन मांग रहा हो। चौथा है फ्रॉड बाय काउंटरफिट वेबसाइट्स। काउंटरफिट वेबसाइट्स मतलब ऐसी वेबसाइट्स जो बिल्कुल वैसी ही दिखती हों जैसे उनकी ओरिजिनल वेबसाइट्स हो, पर वो होती हों नकली, डुप्लीकेट, है ना। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रॉड बाय ईमेल एंड फ्रॉड बाय काउंटरफिट वेबसाइट्स आर समवेयर रिलेटेड, समवेयर लिंक्ड. People will or hackers will send you some email containing the link of the website. For example, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं और इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं. They'll send a website, they'll send a link, you know, कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और आप यहाँ जाके अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए, अपनी KYC कर दीजिए. आप बैंक जाके KYC नहीं कराना पड़ेगा, आपको यहीं से हो जाएगा, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा. एंड सच एंड सच, है ना. आपको जो भी KYC करानी है प्लीज़ आप बैंक जाकर कराया करें, ऑनलाइन नहीं. और ऑनलाइन कराना भी हो तो पहले आपको जानना होगा कि क्या सही में वो SBI की वेबसाइट है. अच्छा, पता कैसे चलेगा? मैं एक वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है, आई विल शो इट टू यू. although it is an old article, but it will help you. Now how to know which is a correct website? चलो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा. अभी वेबसाइट देखिए आप, पेपाल की वेबसाइट है. पेपाल एक मनी ट्रांसफ़र वेबसाइट है.
इसको अगर हम जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी पेज आपने खोल रखा है, सॉरी जूम लिटिल टू मच, जो वेबसाइट आपने खोल रखा है यहाँ डेंजरस दिखा रहा है। अब हम अपने वेब ब्राउज़र में देखते हैं, यहाँ पे लॉक बना हुआ दिखा रहा है, यहाँ ये ऐसा बना हुआ दिखा रहा है और HTTPS से क्रॉस दिखा रहा है, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वेबसाइट सेफ़ है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सेफ़ ही है ये, हाँ हम कह सकते हैं कि सेफ़ है, एज्यूम कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करके देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ, कनेक्शन इज़ सिक्योर, सर्टिफिकेट इसका दिखा रहा है वैलिड है, और ये कनेक्शन सिक्योर है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो जैसे ही आपको ऐसे वाले साइंस दिखाई दे, जैसे ही आपको ये लॉक दिखाई ना दे, टूटा हुआ लॉक दिखाई दे, रेड दिखाई दे, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अब ये इस वेबसाइट को देखिए, paypal.account.getbillservices.com। एक्चुअली पेपल का अकाउंट है ही नहीं, पेपल की वेबसाइट है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल साइट है वो है getbill-service.com। ये तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा दिखाया हुआ है। तो पेपाल की जो ओरिजिनल वेबसाइट होगी पहले तो ये डेंजरस यहाँ दिखाई नहीं देगा, SBI के ओरिजिनल वेबसाइट यहाँ डेंजरस दिखाई नहीं देगा, HTTPS कटा हुआ दिखाई नहीं देगा। HTTPS होता क्या है, प्रोटोकॉल होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा वैसे बता देते हैं कि जैसे मैं मान लीजिए हिंदी बोलता हूँ और आपको अंग्रेज़ी आती है, आपको उर्दू आती है, आपको फ्रेंच आती है, तो हम दोनों आपस में बात कर नहीं पाएंगे। तो बीच में एक पर्सन होता है जिसको इंटरप्रेटर बोलते हैं हम लोग, जो हम दोनों को एक दूसरे की बात समझाता है। तो दिस प्रोटोकॉल इज समथिंग विच मेक्स टू कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर, विच इनेबल्स टू कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर। ये जो दो वेबसाइट्स होती हैं कंप्यूटर ही होते हैं और कुछ होते नहीं हैं। तो वो डेटा कुछ भेज रहा है तो उस दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि वही ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वही वेब ब्राउज़र हो, वही सारी चीज़ें हों। तो ये प्रोटोकॉल क्या करता है, उनके बीच में इंटरप्रेटर का काम करता है। तो ये सिक्योर, HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर। पहले HTTP यूज़ होता था प्लेन, अभी HTTP जो होता है उसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर रहे हो बीच में कोई भी देख सकता है कि आपने क्या यूज़र नेम पासवर्ड डाला, क्या डेटा भेज रहे हो। पर HTTPS क्या करता है, उसको सिक्योर कर देता है, उसको डिक्रिप्ट कर देता है, सॉरी इनक्रिप्ट कर देता है, और वो फिर दूसरे वेबसाइट पे दूसरे कंप्यूटर पे आप जहाँ ओपन कर रहे हैं, जहाँ जो भी होता है वहाँ वेब ब्राउज़र उसको इनक्रिप्ट करता है, सॉरी डिक्रिप्ट करता है। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो आप एक बात समझ लीजिए, जहाँ ऐसी वेबसाइट्स आपको दिखाई दें प्लीज़ आप सावधान हो जाएं, आप कोई भी सेंसिटिव डाटा वहाँ पे नहीं डालें। अब हम लोगों को बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं, जब बहुत सारी वेबसाइट्स हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी हैं जहाँ पे ये HTTP दिखाएगा, ऐसा ही दिखाएगा, पर आप वहाँ अपना डेटा नहीं डाल रहे हैं, अपना आधार कार्ड नहीं डाल रहे हैं, अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर नहीं डाल रहे हैं, है ना। जहाँ भी ये चीज़ें हों, अपना पर्सनल डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल डालने से पहले बहुत सावधान हो जाएं, बी वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि वो वेबसाइट्स नकली हो सकती है और आपका डेटा सारा का सारा वो यूज़ कर लेंगे। बिल्कुल, कई लोग व्हाट्सएप पे वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना कि जियो ने ऐसा ऑफ़र दिया है, इस लिंक पे क्लिक करें और इसको एक्सेप्ट वो करें। आपके यहाँ ऑफ़र है, आपके यहाँ वो लिंक आता है, आप जब उस लिंक को खोलते हो कि जियो आपको फ्री में डेटा दे रहा है या ये आपको ये दे रहा है, मतलब जब आप उस लिंक को ओपन करते हो तो उसमें क्या होता है, आपसे डिटेल आपकी भरवाई जाती है। डिटेल भरते हो आगे जाता है तो उस पर लिखा होता है कि आप ऐसे ही 5 या 6 लोगों को आप ये फॉरवर्ड करिए, तब आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, या ऐसे लोगों को फॉरवर्ड करिए, और आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं हीडलेसली। वो सब फेक वेबसाइट्स हैं, जो आप अपना भी डेटा उसमें आप खतरा अपने लिए पैदा कर रहे हैं, और जिसको आप भेज रहे हैं उसके लिए भी आप खतरा बन रहे हैं, उसको भी आप परेशानी में डाल रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। कोई भी वेबसाइट, कोई भी लिंक फॉरवर्ड करने से पहले सोचें कि क्या आप सही कर रहे हैं, ऐसा ना करें प्लीज़ आप, है ना। तो वेबसाइट्स को कैसे देखेंगे कि सही है या गलत है, तो एक तो ये तरीका हो गया, है ना। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, थोड़ा सा ये हाई लेवल हो जाएगा, फिर भी देख लीजिए आप। ये जो डिटेल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ways टू डिटरमाइन, ये वाला, या इनबॉक्स या एक्सटेंशन फॉर ओपेरा, ये नाम कोई भी चेंज कर सकता है। आप एक वेबसाइट बना के उसका नाम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या चेंज कर सकते हैं आप, ये चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम कुछ भी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, इसको नहीं चेंज कर सकते। HTTPS सिक्योर, ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा,
तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये ब्राउज़र का अपना हिस्सा होता है और वो अपने अकॉर्डिंग ही उसको दिखाएगा कि सिक्योर है कि नहीं। तो ध्यान रखिए, इसके नाम पे और इसके नाम पे मत जाइए, ये देखिए सिक्योर है कि नहीं, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखनी होती है हमको कि अगर थोड़ा सा आप और ज़्यादा इसके डिटेल में जाएंगे कि जो सर्टिफिकेट इसको मिला है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा जाता है सर्टिफिकेट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट आएगा, इसको ओपन करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स होंगी, यहाँ डिटेल्स। अब डिटेल्स में जाके जैसे ही इसके सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारी डिटेल होंगी, कब से कब तक ये वैलिड है। पहले तो देखिए वैलिड है भी कि नहीं, 2022 तक वैलिड है, बिल्कुल है। सब्जेक्ट पे जैसे ही इसके आप क्लिक करेंगे, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, इस वेबसाइट का नाम होगा या उस कंपनी का नाम होगा जिसको ये दिया गया है, कहाँ की कंपनी है, किस कंट्री की है, किस स्टेट की है, सब यहाँ पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक अपने यहाँ की वेबसाइट कोई खोल लेता हूँ, जो इंडिया की कोई वेबसाइट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए फ्लिपकार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। तब तक हम बात कर लेते हैं। हाँ, फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया, ये देखिए यहाँ क्लिक किया हमने, सर्टिफिकेट, डिटेल्स, सब्जेक्ट। इसमें इतनी डिटेल है, flipkart.com को मिला है, डोमेन कंट्रोल वैलिडेटेड है ना, कब तक वैलिड है, कब तक नहीं वैलिड है, किसने इशू किया है इसको, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ देखनी ये होती है कि क्या ये सर्टिफिकेट उसी कंपनी को दिया गया है जिस कंपनी की वेबसाइट आपने ओपन कर रखी है। www.flipkart.com को दिया गया है और हमने यही ओपन किया हुआ है, इसका मतलब ये वेबसाइट सिक्योर है, ये वेबसाइट हमारी सिक्योर है, हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ आपको रेड दिखाई दे, क्रॉस दिखाई दे, बी वेरी वेरी अलर्ट, यू माइट गेट चीटेड वेरी इजीली। ओके, लेट्स मूव अहेड। चूँकि बहुत लंबा सेशन चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में मैं बहुत बात नहीं कर सकता अभी, ज़्यादा अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकता, इससे कम में भी नहीं कर सकता था, फिर मैं बेकार में आई वुड हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम एज वेल एज योर टाइम्स अगर आपको मैंने कुछ डिटेल्स ना दी होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेक न्यूज़। अब आप कहेंगे फेक न्यूज़ कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, या कैसे हमें चीट कर रहा है, या पैसे रुपए कैसे ले रहा है। एक्चुअली आपके पैसे रुपए तो ये नहीं ले रहा डायरेक्टली, ये बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स की तरह है, जहाँ आप पैसे दे रहे होते हैं, टैक्स दे रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप टैक्स दे रहे हैं। कैसे? ये जितने फेक न्यूज़ वाले हैं, बहुत सारे उल्टी सीधी न्यूज़ आपको फैलाते हैं, आपको देते हैं। और रिसेंटली जितने सारे आपके आपकी मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, जितने सारे आपके राइट्स हुए हैं, वो सब इन्हीं लोगों की वजह से, फेक न्यूज़ की वजह से। वैसे भी जो मीडिया की सिचुएशन है इस समय, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट you all know about it, what kind of people they are now, what kind of journalists are there right now. Recently कुछ केसेस हुए हैं और कैसी रिपोर्टिंग हुई है आपको पता है। पर ये फेक न्यूज़ बिल्कुल फेक होती है, झूठी होती है, या थोड़ी झूठी होती है, थोड़ी सच्ची होती है, आपको बरगलाया जाता है इसमें। अब उससे क्या होता है, you lose your head, you lose your mind, you lose your control over your head. अब ये फेक न्यूज़ ऐसा नहीं है कि केवल न्यूज़ फॉर्म में होगी, केवल रिटन फॉर्म में होगी। आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, कितनी वाहियात वीडियोज वहाँ पड़ी हुई हैं फालतू की, और बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस भी हैं। तो हमें देखना होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं। क्या हमें वीडियो के नाम पे, न्यूज़ के नाम पे वल्गैरिटी परोसी जा रही है, एक्सट्रीमिस्ट बनाया जा रहा है, फैनेटिक बनाया जा रहा है हमको? क्या हमको लड़ाई के लिए, मारकाट के लिए उकसाया जा रहा है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसके नाम पे लड़ाया जा रहा है? ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और होता क्या है कि आपके पास एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। सपोज़ कि मैं हिंदू हूँ, तो देखा है मैंने, वो उन ग्रुप से मैं एग्जिट हो गया बहुत पहले, जैसे ही आते थे एग्जिट हो गया था मैं। हिंदू ग्रुप, मैं एक विशेष स्पेशल कास्ट से हूँ तो कास्ट का अलग अपना ग्रुप है ना।
हिंदू ग्रुप, मुसलमानों का, मुसलमान आप हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपसे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे। अब उसमें वीडियोज़ और ऑडियोज़ और न्यूज़ आएंगे, वो कैसे आते हैं? आज यहाँ इतने मुसलमानों को काट डाला गया, आज यहाँ इतने हिंदुओं को काट डाला गया, आज यहाँ इतने सिखों को परेशान किया गया, इतने ईसाइयों को यहाँ परेशान किया गया, और आप उस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, उसकी न्यूज़ को पढ़ते हैं और आग बबूला हो जाते हैं और हेट्रेड फैल जाती है आपके अंदर। तो आप उस वेबसाइट पे जितना बार विजिट करते हैं और उस वेबसाइट को आप फॉरवर्ड भी करते हैं, जितनी बार आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं उतने पैसे उनको मिलते हैं, और वो पैसे जो मिलते हैं वो पैसे वो यूज़ करते हैं उस वेबसाइट को और डेवलप करने में और आगे बढ़ाने में। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दूसरे कंट्रीज़ की भी मिलेंगी जो कि यहाँ की नहीं है, दूसरे कंट्रीज़ की हैं, और वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, जो आपके अंदर भ्रम फैला रहे हैं। आपको बताएंगे कि आपके इंडिया में आपके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, आप वहाँ माइनॉरिटी है तो आपके साथ कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। आपको कोई न्यूज़ वैलिडेट करनी है तो आप उसको जो ऑथेंटिक न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वहाँ से वैलिडेट करें। एक बार गूगल में सर्च मारें, एक बार खोजें कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है, और हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूज़ में होगी, और नहीं हुआ है तो क्या उनके पास कोई स्पेशल वो बायनोकुलर्स हैं कि वहीं से देख ले रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोगों को मार डाला गया? ये सब आपको बरगलाने की और आपको लड़ाने की कोशिश है और कुछ नहीं। और इसके पीछे बहुत सारे तरह के लोग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आप जानते हैं। आई डोंट वांट टू नेम देयर कैटेगरी, किस कैटेगरी के लोग हैं या कौन लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, किसको फ़ायदा है इससे, ये भी आप जानते हैं। तो फेक न्यूज़ आपसे, आपके विजिट से आपका टाइम लेता है। आप क्या करते हैं, वहाँ जितना टाइम वहाँ देते हैं, आप एक वेबसाइट पे 10 मिनट के लिए रहें, उस 10 मिनट तक के लिए उसको एडवर्टीजमेंट के पैसे मिले, वो 10 आपके प्रीशियस मिनट्स आपने फालतू चीज़ पे खर्च किए। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी चीज़ों को बहुत सावधानी से यूज़ करें। फेसबुक और ट्विटर जैसी चीज़ें कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके लिए, इसके लिए आपको यूएस में जो फेसबुक और गूगल पे फाइन लगा, जो वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो चीज़ें हुई उनके बारे में थोड़ी न्यूज़ सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिए कि वहाँ के इलेक्शन को कैसे प्रभावित किया गया और कैसे उसके लिए कितने पैसे रुपए खर्च किए गए और क्या किया गया। फेसबुक अगर देखना यूज़ करते हैं तो वीडियोज़ एक ही टाइप की आपको देखने लगती हैं और आप वीडियोज़ घंटों देखते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप फेसबुक देखते हैं और जैसी वीडियो आपको पसंद आती है वैसी ही सारी वीडियोज़ क्यों आती हैं? क्योंकि वो सीख जाता है। इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, इसको एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी को बोलते हैं। उसको पता चल जाता है कि आपका की मेंटलिटी कैसी है और आपको वैसे ही कंटेंट वो प्रोवाइड करता है। अब इससे क्या होता है, आपके दिमाग में वही बातें घुसती जाती हैं कि नहीं ऐसी ही सिचुएशन है। आप एक्सट्रीमिज्म वाली वीडियोज़ सर्च करेंगे, रिलीजियस वीडियोज़ सर्च करेंगे, आप बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोज़ सर्च करेंगे, वैसी वीडियोज़ आपको परोसेगा। पर एक और बात है, अगर कोई चाहता है कि उसकी वीडियोज़ प्रमोट हों तो यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक वो प्रमोटेड वीडियोज़ आपको दिखाते हैं आपकी मर्ज़ी के बिना। मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है पर आपके सामने बार बार वो वीडियोज़ आएंगे तो कभी एक बार देख लेंगे आप, एक बार देखें आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। जो ये लोग होते हैं जिनको अपनी वीडियोज़ को प्रमोट कराना होता है वो उसके पैसे देते हैं, ताकि आपको पता है गूगल में सर्च करते हैं कोई भी चीज़ तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट्स आती हैं वो कैसे आती हैं, उसके भी पैसे लगते हैं। आप एक वेबसाइट बनाइए और चाहते हैं कि डिफरेंट टर्म्स सर्च करने पे आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आए, गूगल इसके लिए पैसे लेता है। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके भले के लिए काम कर रही हैं, उनको पैसा कमाना है, ये बात आप ध्यान रखिए। और फेक न्यूज़, आपको लगता होगा कि ये कुछ चीट नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी चीटिंग करते हैं ये न्यूज़ चैनल्स आपके साथ, ये जो फेक न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं आपकी। तो उनको जानने का सबसे पहला तरीका तो यही होता है कि देखिए कि वो HTTPS वाली है कि नहीं। उसके बाद ये होती है कि जो वेबसाइट पे आपको न्यूज़ मिली और थोड़ी भड़काऊ है, थोड़ी डाउटफुल है, उसको आप प्लीज़ इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। अमिताभ बच्चन को इन लोगों ने मार डाला था, ये आपकी जो महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग हुई, आसाम में मॉब लिंचिंग हुई, जितनी सारी होती हैं ये फेक न्यूज़ की वजह से होती है। व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज भेज दिया और लोग उठे और किसी को मार दिया। आप प्लीज़ ऐसा ना बने। आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो उसको वैलिडेट करें, न्यूज़ चैनल्स ध्यान से देखें। आप देखें कि कौन आपकी बात कर रहा है, कौन किसकी बात कर रहा है, कौन आपको भड़का रहा है। आप समझदार हैं सब लोग,
तो इतना आपको समझ में आ जाएगा। फेक न्यूज़ साइबर क्राइम का एक बिल्कुल इफ़िशिएंट फॉर्म है ये, और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला फॉर्म है इस समय। आप 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये किसी को कोई ले लेता है, पर ये फेक न्यूज़ आपकी पूरी ज़िंदगी ले लेता है, किसी इंसान की ज़िंदगी ले लेता है, किसी को मार डाला जाता है इसकी वजह से, है ना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज़ आप इससे बचे रहें, ये मेरी आपसे सलाह है। और ज़्यादा अगर आपको और जानना है इसके बारे में, तो ये गूगल ने है ना तो एक प्रेजेंटेशन बनाई है साइबर क्राइम पे, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा नीचे, आप यहाँ जाके और इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी स्लाइड है और बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स भी थोड़े इसमें हैं, पर स्टिल इफ़ यू वांट टू डू दैट, एंड स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर interested in technology and all those things, please do visit this presentation and you will be helped by it. Okay, so I hope कि कुछ मैंने कोशिश जो की आपके लिए वो कुछ मैं आपको डिटेल दे पाया, बता पाया, और उम्मीद है कि अपनी कोई भी सेंसिटिव डिटेल आप किसी को शेयर नहीं करेंगे। वेबसाइट्स के बारे में श्योर रहेंगे कि सही वेबसाइट्स हैं, कहीं बिना वजह के अपना UPI पिन या ATM पिन नहीं डालेंगे, फालतू के एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं करेंगे, एक्सटेंशंस फालतू के इंस्टॉल नहीं करेंगे, जिन एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं है उनको अनइंस्टॉल कर देंगे, बाद में हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फेक न्यूज़ से दूर रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सौरभ आप लोगों से विदा लेता हूँ। हैव अ वेरी सेफ एंड सिक्योर 2020 एंड होप यू ऑल विल रिमेन सिक्योर, सेफ फ्रॉम दीज साइबर क्राइम्स, एंड प्लीज़ spread the word, please tell others, please guide other people who are around you, elders, people who are less tech savvy, please guide them, please let them know what is happening around. Otherwise we have left this society, our country, our people to be exploited by these hackers, है ना, people who are senior citizens. All of a sudden they are losing all of their money, all of their savings, and I have seen them in tears, so please help others, be safe, be secure, have a good day, thank you, bye bye.